Hello juniors, I'm Sarthak Harsh, third sem. IT, I'm here to explain you things about blockchain and Web3. And I may tell you that you can trust me on Web3 because I have enough of proof of work in it. And I'm also currently interning in a Web3 startup, so I know about the recent releases, recent technologies, and how is Web3 growing. So we should directly go to the topic that before diving in the white paper. Before I explain you about the white paper, we should first learn about why was there a need for blockchain. So if you all have heard about the infamous 2008 US economic failure, so it was because of the banks giving away loans so easily. So banks were without any collateral or without even investigating or without even thinking twice, they were just giving away loans to many businessmen to set up their industries. So what happened was because of that, these businessmen were not able to pay back their money. The banks were empty. So the money of US citizens were in a high risk, was in a high risk. So the government had to come and bail out the banks. So it resulted in an economic failure. So in that year only, the Satoshi Nakamoto, so he had the idea that what if the money of the citizens were not in a hand of centralized authority like a bank? What if the money was in control of the citizens themselves? So the in the whole economic failure, the citizens would be the most secure ones. So that from there the idea of blockchain basically came. So now what a blockchain is. So first we have to understand what a blockchain is. Blockchain is basically a chain of blocks, and the blocks contain certain type of information. So the blocks have mainly it has many codes, many hashes, and the main information which is of our use, which we have to study on, is transactions. So the structure of block is basically, if I show you, the structure of block is basically like, if it's a block, it would have a block number. Let us say it's the first block, and it has the transactions. Many transactions like these, and it has a nonce. So we will have to understand what is this nonce. So in the whole blockchain, if we talk about Bitcoin blockchain, the main play is of the nonce. So every miner, you must have heard that blockchain miners earn so much, and they mine, they have high frequency GPUs and all of that stuff. So they do only one thing. So basically, mining is only finding this nonce. If you find this nonce, you are able to enter the blockchain network. I understand that right now it must be like very confusing for you all. I'm throwing away many jargons, but once I'm done, I will go to the Bitcoin white paper, and there you will be more clear about what was I trying to explain over here. So you, for now, just concentrate on what a block structure look likes, and then as we will move forward. You will all understand more clearly that what blockchain is, what blocks are. So one more thing which we should add there is,
So this nonce is the most important thing. The transaction and the nonce, they are the most important things in a block. The transaction is basically the information, like I have written some hard-coded information here that these are transactions happening, and the nonce is a hash. So basically, if the nonce is, if on most basic language I tell, the nonce is something like I give a question that find a block hash ending with 00000. So this is basically, in the most layman term, it's a question like find a block hash which ends with 00000. So all the miners have to find a block hash which starts or ends with a certain digit, which for now I have taken that it ends with five zeros, but it could be anything. So this is the most challenging part. So it would be looking very easy, that it's quite easy to be a miner. We just have to find block hashes, but it's not that easy. So the nonce is basically a hash. So it could be of 16 to 18 digits, and it's not easy for a computer to find a hash which is 18 to 20 digits, that too with a certain condition that it should have five zeros in the starting or ending. So what miners do is they have machines on which code, like they in their machines, the Node or Golang or Java, any, or even C++, the code is running, and they have like very high configuration computers which have like the best of the best specs you can think. So these computers just find the block hashes or the nonce very quickly. So every miner have a 10-minute window. In that 10-minute window, or like before that 10 minute, it like if the miner finds a nonce before that 10 minutes, it would be like he would get more profit, cause like it goes like many miners are trying to find the nonce. So the earlier you find the nonce, you would gain more profit. So it goes like that. So in a miner machine, basically there is a Node or Golang or Java, C++ backend code running, and in that backend code there are some logics. If like you can search any of the GitHub repo for the code which is running for Bitcoin miners, because the miners concept is only limited to Bitcoin. So they have this code running in the backend, and this code is just trying to find the nonce. Now once they find the nonce, एक बार उनको नॉन्स मिल गया, तो वो नेटवर्क में है। तो ब्लॉकचेन ब्लॉक्स का नेटवर्क है, कि अगर मैं एक ब्लॉकचेन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ कुछ पार्ट उसका, तो वो बेसिकली एक ब्लॉक्स का नेटवर्क है। तो उस नेटवर्क के वो एक पार्ट है। अब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये ब्लॉक्स से और उसका एक नेटवर्क बना हुआ है, जिस नेटवर्क का अगर मैं पार्ट बन जाता हूँ, तो मैं जो ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को लीड कर सकता हूँ। और अब उन ट्रांजैक्शंस को लीड करने के लिए, और मुझे इस पूरी ब्लॉकचेन का, इस नेटवर्क का पार्ट बनने के लिए, मेरे पास एक बैकएंड कोड है जो यहाँ से जो नॉन्स के लिए कंडीशन आई है उसके ऊपर वर्क कर रहा है, और एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता है, तो उसके जो उसका ट्रांजैक्शंस जो वो चाहता है, लाइक इधर जो उसका कोड है वहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस भी हैं, तो जो ट्रांजैक्शंस वो चाहता है वो ट्रांजैक्शंस उस ब्लॉक में आते हैं एज डेटा। सो अगर ब्लॉक स्ट्रक्चर बोलूँ तो मैं, ये डेटा है, ये नॉन्स है, ये ब्लॉक हैश है, तो वो डेटा और नॉन्स वो उसके बैकएंड से आ रहे होते हैं। और ये जो प्रीवियस ब्लॉक हैश है, ये इससे लाइक ये जो ब्लॉक्स हैं और सिक्योर हो जाते हैं। लाइक अगर मैं आज कोई हैकर आता है उसको ब्लॉकचेन को डिसरप्ट करना है, तो वो क्या करे, अगर वो ब्लॉक हैश चेंज कर दे,
तो अब अगर वो ब्लॉक हैश चेंज कर देगा तो वो जो ब्लॉक है वो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन जो नेटवर्क है, अब मैं खाली बिटकॉइन की बात करूँ अभी, तो वो नेटवर्क प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस एल्गोरिथम पे चलता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क में यही ही एक उसकी कंडीशन है कि जैसे मैंने नॉन्स फाइंड किया है, तो अगर मुझे और जो मेंबर्स हैं नेटवर्क के वो मेरे इस नॉन्स को वैलिडेट कर देते हैं, तो मैं इस ब्लॉकचेन का पार्ट बन जाता हूँ। अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिटकॉइन है, आपने वो बिटकॉइन किसी को ट्रांसफ़र किया। अब वो ब्लॉकचेन पे कैसे एग्जीक्यूट होता है कि अगर मैंने अपने वॉलेट से किसी को $25 भेजे इन बिटकॉइंस, सो उसका यूएसडी में जो अमाउंट है वो $25 है। तो मैंने एज बिटकॉइंस किसी को भेजा। अब होगा ये कि एक मेम पूल होता है, वी हैव अ मेम पूल। इस मेम पूल में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं जो मैं यहाँ अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो जाते हैं। अब पीछे से जो ये बैकएंड कोड है ये रन हो रहा होता है नॉन्स फाइंड करने के लिए। जैसे ही कोई माइनर नॉन्स फाइंड करता है, ये जो पूरा ये ब्लॉक है इस मेमपूल में आ जाता है। अब इस मेमपूल का एक अलग एल्गोरिथम चल रहा होता है, और इस मेमपूल से जो दूसरे इस मेमपूल में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। जो जो दूसरे ब्लॉक्स हैं या दूसरे मेंबर हैं ब्लॉकचेन में, वो इस मेमपूल से कुछ ब्लॉक्स को वैलिडेट करते हैं। वो जब इस ब्लॉक में जो इस मेमपूल में जो ब्लॉक्स हैं, जैसे ही वो किसी भी ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं, वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो अभी लाइक आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है कि पहले यहाँ से नॉन्स फाइंड करेगा कोई, फिर ब्लॉक बनेगा, फिर वो मेमपूल में जाएगा, वहाँ से दूसरे जो माइनर्स हैं, दूसरे माइनर जो नेटवर्क में हैं, वैलिडेटर्स हैं, वो उसको वैलिडेट करेंगे, फिर जो है अमाउंट है वो दूसरे अकाउंट में जाएगा। ये इन थ्योरी बहुत बड़ा प्रोसेस लगता है, बट जो यहाँ माइनर्स का सिस्टम होता है, मशीन होती है, वो बहुत पावरफुल होती है, तो वो नॉन्स कुछ सेकंड्स में ही फाइंड कर लेती है। फिर उसके बाद जो मेमपूल में वैलिडेटर्स का नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि कुछ सेकंड्स में ही, मिली सेकंड्स में इवन, वो वैलिडेट हो जाता है और ट्रांजैक्शन हो जाता है। सो यहाँ पे कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही यहाँ से वैलिडेट होकर ट्रांजैक्शन हो गया, ये ब्लॉक उस ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है ब्लॉकचेन का। अब अगर मैं वाइट पेपर पे आके जो है, जो सतोशी नाकामोटो ने 2008 में निकाला था, तो इस पे आके अगर मैं समझाऊँ, तो ये जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है ये यही चीज़ समझा रहा है कि यहाँ पे जो वैलिडेटर्स हैं उनका ही एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है। जो ब्लॉकचेन है वो इन वैलिडेटर्स के जो पूरे नेटवर्क को, जो नेटवर्क वैलिडेट कर रहा है, या कोई अगर नया लाइक कोई नया मेंबर आ रहा है फॉर एग्जांपल उस नेटवर्क में, सो वो पीयर टू पीयर वर्क करते हैं। जिसका मतलब है कि अगर मैं एक ब्लॉकचेन का पार्ट हूँ, एंड मेरे पास अराउंड 10 ट्रांजैक्शंस हैं, तो मैंने एक नया ब्लॉक बनाया, मेरे पास 10 ट्रांजैक्शंस हैं, मैंने वो डाले, मैंने नॉन्स फाइंड किया, मैंने मेमपूल में डाल दिया। अब मैं उस ब्लॉकचेन का जो पार्ट हूँ, तो और जो मेरे दूसरे फेलो माइनर्स होंगे, वो इस मेमपूल से कुछ ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करेंगे। जैसे ही वैलिडेशन होगा, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा ब्लॉक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इस तरह एक और भी चीज़ होती है कि आप एक ब्लॉकचेन में कितना प्रूफ ऑफ वर्क दिखा रहे हो, कि आप कितने पहले से हो, आपको दूसरे जो माइनर्स हैं वो कितना अच्छा जानते हैं, आपकी क्या कैसी इमेज है बेसिकली एक ब्लॉकचेन में। तो उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका ट्रांजैक्शन कितना जल्दी वैलिडेट होगा। तो इसीलिए जब कोई ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी की बात आती है, तो ये भी एक वो ये भी एक यहाँ पे इम्पैक्ट करता है कि जो माइनर्स हैं उनका ये भी कंसर्न होता है कि अगर वो कुछ भी गलत करेंगे ब्लॉकचेन में, हैकिंग कोशिश करेंगे या कोई ट्रांजैक्शन को लाइक बीच में बाईपास करने की कोशिश करेंगे, तो पहली बात तो वो उनका ब्लॉक रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो उनका इमेज है ब्लॉकचेन में उस पर इफेक्ट आएगा, और दूसरी बात से उनका कभी भी कोई ब्लॉक वैलिडेट नहीं होगा। सो ये भी, और दूसरा ये कि अब माइनर्स कैसे अर्न करेंगे, लाइक अब मैं अगर इतनी महंगी मशीन खरीद रहा हूँ, तो मैं खाली इसीलिए तो नहीं खरीदूंगा कि मेरे को ये इंश्योर करना है कि ट्रांजैक्शंस आराम से हो रहे हैं। तो होता ये है कि अब जैसे लाइक जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, तब अराउंड 10 बिटकॉइंस का
एक कह सकते हैं कमीशन मिलता था हर आपके वैलिडेशन पे। लाइक फॉर एवरी ब्लॉक यू ऐड इन दी ब्लॉकचेन यू गेट 10 BTC। तो अब वो बहुत कट होके मेरे ख्याल से 3.25 BTC हो गया है। तो फॉर एवरी ट्रांजैक्शन अभी जो चल रहा है माइनर को 3.25 BTC मिलता है। तो BTC की जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप लगा सकते हो एक एस्टिमेट की हाउ मच अ माइनर कैन अर्न। सो दैट्स हाउ द बिटकॉइन। तो मैं अभी इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ बिटकॉइन पे क्योंकि डिफरेंट ब्लॉकचेन्स का जो तरीका है चलने का वो बहुत डिफरेंट है। लाइक बिटकॉइन में ऐसा है कि हमें एक नॉन्स फाइंड करना होता है। अब दो और बहुत फेमस ब्लॉकचेन्स हैं, इथीरियम और सोलाना। तो उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उनका ब्लॉक स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होता है। उनका जो कंसेंसस एल्गोरिथम है, जो मेन चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे वो प्रूफ ऑफ वर्क है, सोलाना के लिए वो प्रूफ ऑफ स्टेक है, तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके से चलता है। एंड ऑल्सो जो बिटकॉइन है वो एक ऐसी ब्लॉकचेन है, एक तो वो सबसे फर्स्ट जो पहली ब्लॉकचेन है वो बिटकॉइन थी। सेकंड वो खाली फोकस थी ट्रेडिंग पे। लाइक अगर हमें करेंसी वाइज चाहिए कुछ, कि हमें कुछ करेंसी का अगर ऑल्टरनेट चाहिए तो खाली उस पर फोकस थी। आप इसके ब्लॉक में कोई प्रोग्राम नहीं स्टोर कर सकते। जैसे और जो दूसरी ब्लॉकचेन्स हैं उसके स्ट्रक्चर में ये सब चीज़ें तो होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वहाँ पे मेन चीज़ होती है कि आप एक प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं। जो सोलाना के केस में शायद से कोई रस्ट प्रोग्राम होगा, और इथीरियम के केस में सॉलिडिटी प्रोग्राम होगा। तो वहाँ पे आप एक्चुअली कोई प्रोग्राम स्टोर कर सकते हो। और जो आपने अभी हैकाथॉन्स के टाइम अगर किसी ने रिसर्च वगैरह किया हो ब्लॉकचेन पे, मेरे ख्याल से मैंने कुछ जूनियर्स का सुना था वो ब्लॉकचेन पे पढ़ रहे थे ब्लॉकचेन के बारे में, तो डी एप्स के बारे में सुना होगा। तो जो डी एप्स होते हैं उनका बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है। वी कैन स्टिल ट्रेड बिटकॉइंस ऑन डी एप्स, बट उनका जो कोर है वो होता है ये प्रोग्राम, कि हाउ दे आर बिल्ड। तो वो ये प्रोग्राम लिखते हैं, इस प्रोग्राम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी कह लो, उसको ये कहते हैं। तो उनका जो कोर होता है डी एप्स का वो ये होता है। अब इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। जैसे अगर मैं एक सॉलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊं शायद। मैं एक सॉलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ। जैसे ये तो बहुत छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, एंड ये सही भी रहेगा समझाने में। तो ये होता है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। ये बिटकॉइन बिटकॉइन में तो कहीं इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, दूर दूर तक। बट जो दूसरी ब्लॉकचेन से जो आजकल चीज़ चल रही है वेब 3 में, लाइक जो वेब 3 डेवलपर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वो मेनली एक कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं। जैसे ये सॉलिडिटी पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ी बहुत भी कोडिंग नॉलेज हो तो ज़्यादा इतना समझ आ ही रहा होगा कि ये फंक्शंस हैं और ये कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ रिटर्न कर रहे हैं। ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब ये नॉर्मली, लाइक अब नॉर्मल C++ में फंक्शन लिखोगे, उसको रन कर दोगे, आउटपुट आ जाएगा। इसका वैसा नहीं है, इसका बहुत ही अलग सीन होता है। तो पहले मैं बिटकॉइन वाइट पेपर के बारे में समझा देता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं ये समझा दूंगा कि दूसरी ब्लॉकचेन जो आजकल है, सब हमें ऑब्वियसली माइनर नहीं बनना। अभी तो इतने पैसे भी नहीं है कि बिटकॉइन ट्रेड कर लें। और तो इसलिए बिटकॉइन खाली पड़ रहे हैं क्योंकि वो बेसिस है। बट आजकल अगर सही में आना है वेब 3 में, तो यूज़ फिर कॉन्ट्रैक्ट लिखने का ही होगा। तो जो सीखना है वो कॉन्ट्रैक्ट लिखना ही सीखना है। और बिटकॉइन वाइट पेपर भी मुझे नहीं लगता कि उतना डिटेल में समझ आएगा, बट देखते हैं। मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि इसका ओवरव्यू ही दूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको अभी समझ भी नहीं आएगा जब तक खुद से ब्लॉकचेन पे नहीं काम करोगे, क्या है क्या नहीं है, उसके पहले नहीं समझ आएगा। वैसे दूसरे सेशन अगर हुआ तो उस तक शायद इतना माइंड थोड़ा बहुत हो जाएगा कि पूरा समझ सकते हैं। बट अभी देखते हैं। तो इसमें बेसिकली वही सब दिया हुआ है। हाँ, ये देखो। अब ये जो है ना, लाइक अब एक जो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो मैं ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से बताऊं, तो अगर आपको अभी कोई भी
मनी ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल आपकी इंटर्नशिप लगी, आपको डॉलर्स में पेमेंट आ रहा है। अब आप वो पेमेंट लोगे पेपैल के थ्रू या रेमिटेंस फंड के थ्रू। अब जब भी आप ऐसे पेमेंट लोगे तो आपका, अगर आपके पास $1000 आ रहा है तो वो 1000 पूरा पूरा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। वो आएगा, कुछ कट लेगा बैंक, कुछ ट्रांजैक्शन फ़ी होगी, कुछ कन्वर्जन फ़ी होगी। तो ऐसे हर अलग बैंक पे डिपेंड करके कुछ कुछ फ़ीस कटती रहेगी और आपको पूरा $1000 नहीं मिलेगा, उसमें कुछ कट होके ही मिलेगा। तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आज मुझे कहीं से पेमेंट आनी है तो मेरे को पेमेंट कट होके मिल रही है। तो अगर मैं किसी को अपने वॉलेट के थ्रू, तो अगर मैं एक वॉलेट दिखाऊं, ये होता है वॉलेट। तो इसमें आपकी सारे एसेट्स, एनएफटीज, टोकन्स जो आपके पास हैं वो सारे स्टोर होते हैं। और ये इस वॉलेट में आपका मतलब जैसे जीपे वगैरह किसी ने अगर यूज़ करा हो तो ये एक बिटकॉइन या वेब3 का जीपे ही है, जिसमें क्यूआर नहीं होते। तो इस वॉलेट के थ्रू आप किसी को भी जो है टोकन्स या रियल मनी आप भेज सकते हो। मतलब रियल मनी से, जैसे यूएसडी है तो यूएसडी टोकन का एक यूएसडीटी टोकन है जो बैक्ड बाय यूएसडी है। तो लोग उसको यूज़ करते हैं नॉर्मल करेंसी, क्योंकि अब हम सबको बिटकॉइंस तो भेज नहीं सकते, कॉल ना ही सोलाना भेज सकते हैं। तो जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो बिट उस पे ब्लॉकचेन पे हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं ऐसे ही जो स्टेबल कॉइन्स हैं उसमें। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसे, खाली ये रीज़न भी नहीं था कि इसमें स्टार्टिंग में बोला कि जो इकोनॉमिक फेलियर था वही एक रीज़न था, वो एक मेजर रीज़न था। बट और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस किया हुआ ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट। तो दूसरा ऐसे रीज़न है ये डबल स्पेंडिंग। अब डबल स्पेंडिंग क्या होता है? अब जैसे आजकल, अब अगर हमें जो नॉर्मल करेंसी में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमें उसको अल्टरनेट ढूंढना था, तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम एक डिजिटल करेंसी बना दें। मतलब कोई ऐसा नीड नहीं थी कि हमारे पास ब्लॉकचेन ही होनी चाहिए। अगर मैं किसी को ऐसा बोलूं कि यार ये जो नॉर्मल करेंसी है इस पे ट्रांजैक्शंस बड़े वो होते हैं, रिस्की होते हैं, इस पे नहीं करने चाहिए। आप फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हो, तो एक बैग में पैसे लेके जा रहे हो, आपको कोई बैग ही लूट ले, तो वो सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं किसी को कहूँ कि मुझे कोई ऑल्टरनेट चाहिए, तो वो कभी भी ब्लॉकचेन आइडिया नहीं देगा। वो ऐसा कहेगा कि मैं एक डिजिटल करेंसी बना लूँ। तो डिजिटल करेंसी में सबसे बड़ा इशू जो था वो था डबल डबल स्पेंडिंग का। डिजिटल करेंसी क्या होगा? मैं एक पीडीएफ बना दूँ, उस पीडीएफ में मैं डाल दूँ कि कुछ प्रोग्राम करके कि इसमें 5000 रुपये हैं उस पीडीएफ में, फॉर एग्जांपल। लाइक ये बहुत एब्सर्ड लग रहा होगा, बट डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट ऐसा ही होगा अगर होगा तो, कि मैं किसी भी तरह एक किसी फाइल में कि कुछ कोड करके या कुछ भी करके मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट उसमें दिखा दूँ। तो अब उससे होगा क्या? अब जैसे हम लोग पीडीएफ 100 लोगों को भेज सकते हैं साथ में, तो क्या गारंटी होगी या कितना हमें, लाइक कितनी अथॉरिटी होगी कि जो मैं अगर उसमें 100 रुपीज़ किसी को दे रहा हूँ तो वो मैं एक ही बार दे रहा हूँ। लाइक मैंने ऐसा, अगर मैं ऐसा, वो पीडीएफ है उसको मैंने रिचार्ज करवा दिया 5000 रुपीज़ से। अब ये इसकी क्या गारंटी है कि मैं 5000 ही स्पेंड कर रहा हूँ? हो सकता है कि मैं बार 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 सेम ही को स्पेंड करता रहूँ, क्योंकि उसका कोई ट्रैक नहीं है। तो डिजिटल करेंसी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो यही है कि डबल स्पेंडिंग का कोई लिमिट ही नहीं होगी। मैं कितने लोगों को भी कितना ही पैसा भेज सकता हूँ, और उसमें से जो मेरे वॉलेट से जा रहा है वो खाली कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ही है, वो डाल के मैं कितना भी स्पेंड कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा लूप होल है डिजिटल करेंसी में। तो इसीलिए एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था कि जो एकदम सॉलिड सॉल्यूशन हो, लाइक उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली पेपर निकाल दिया, उसके बाद प्राइस वाइज ले लिया उस पेपर के लिए, पर वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये एक नीड थी कि हमें ब्लॉकचेन ही चाहिए। और ये जो है वो ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर है जैसे मैंने पहले समझाया था। अब इसमें हैश होता है, पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है। एंड हाँ, पब्लिक की और प्राइवेट की भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो होता ये है कि अगर अभी जो मैं एक उसका एग्जांपल लूँ बैंक्स का, तो आपके पास होता है अकाउंट नंबर और अपना पिन। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो दो चीज़ें चाहिए होती है ट्रेडिशनल बैंक्स में।
एक होता है आपका अकाउंट नंबर, एक होता है पिन। अब जो अकाउंट नंबर होता है, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ये नीडेड होता है, और ये भी आप डालते हो किसी को अगर आप पैसे भेज रहे हो, ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। और होता ये है कि अब आपको पिन बहुत सिक्योरली रखना पड़ता है, अकाउंट नंबर की आपको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती। पिन आपका सबसे सिक्योर होना चाहिए, लाइक आप किसी को बता ही नहीं सकते, आपने किसी को पिन बता दिया तो आपका अकाउंट गया। फिर अगर अब आपको किसी से पैसे लेने हैं, तो अगर ये हो गया जब आपको खुद कोई ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, अगर अब आपको किसी से पैसे लेने हैं तो आप खाली उसको अपना अकाउंट नंबर दोगे, पिन नहीं दोगे आप उसको अपना, क्योंकि वो जब कोई और आपको पैसे भेज रहा है तो वो अपना पिन डालेगा आपको पैसे भेजने के लिए, आपको उसको पिन देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये दो चीज़ें एग्जैक्टली जो हमारा ये क्रिप्टो वॉलेट है, ये दो चीज़ें उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, पब्लिक पब्लिक की और प्राइवेट की में। पब्लिक की होता है आपका अकाउंट नंबर, प्राइवेट की होता है आपका पिन। बट अब यहाँ पे ट्रेडिशनल बैंक्स में क्या होता है, अकाउंट नंबर 16 डिजिट्स का होता है, पिन आप 4 6 जितने का भी रख लो, तो वो दोनों में ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता। पब्लिक प्राइवेट की में रिलेशन होता है। तो जो पब्लिक की होती है वो AD255A की होती है। जो AD255A आई थिंक आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। तो 8255 की आती है 8255 एल्गोरिथम से। सो इस एल्गोरिथम से की जनरेट होती है। और इस की जो लाइक सबसे सही बात है वो ये है कि ये हमेशा की पेयर में आएगी। लाइक हर एक पब्लिक की के लिए एक प्राइवेट की होगी, और हर एक प्राइवेट की के लिए एक पब्लिक की होगी, जो दोनों एक दूसरे से मैप्ड होंगी। तो अगर मैं बहुत लेमैन टर्म्स में समझाऊं, तो 8255 एल्गोरिथम जो है वो एक मैप मेंटेन कर रहा है। तो जैसे उसने एक पब्लिक की जनरेट करी, तो वो मैप हो गई एक प्राइवेट की से। फिर उसने दूसरी पब्लिक की जनरेट करी, वो मैप हो गई दूसरी प्राइवेट की से। तो ये मैपिंग जो बनती जाती है बनती जाती है बनती जाती है, और आपके जो यहाँ पे वॉलेट है, आपको अगर किसी से पैसे चाहिए इस पे, आप उसको अपनी पब्लिक की भेजोगे, वो पैसे भेज देगा। आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो इसी में आपकी प्राइवेट की स्टोर्ड है, आप इसी के थ्रू उसको पैसे भेज सकते हो। आपको बस एक सिग्नेचर देना होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मैसेज भेजूं व्हाट्सएप पे, और ये मैसेज मैं आपको किसी ग्रुप में भेजूं, और मैं चाहता हूं कि ग्रुप में खाली वही लोग जिनके पास उस मैसेज की प्राइवेट की है वही उसको एक्सेस कर पाए। तो मैं क्या करूँगा, उनको पर्सनली प्राइवेट की भेज दूंगा, और या फिर कहीं ब्रॉडकास्ट कर दूंगा जहाँ पे खाली वो लोग हों, और उस प्राइवेट की से वो लोग उस पब्लिक की को साइन करेंगे और वो मैसेज देख लेंगे। तो ये होता है कि साइनिंग, जैसे अगर आज मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना है, और वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को अपनी जो पब्लिक की से ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन को प्राइवेट की से साइन करना होगा, और वो जो पब्लिक की और प्राइवेट की हैं वो एक मैप में स्टोर्ड है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि यार मेरी पब्लिक की कुछ और है, मैं किसी और की प्राइवेट की से साइन कर लूँ, वो उसका कोई चांस ही नहीं होता। दूसरा, ये जो पब्लिक की और प्राइवेट कीज होती हैं, ये AD255 पे एल्गोरिथम का एक कर्व है। तो जितनी भी कीज होंगी वो इस कर्व में आएंगी। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में और उठ रहा होगा कि अगर ये की ही है, तो अब अगर इतना बड़ा हैश फाइंड कर सकते हैं नॉन्स हम लोग इतनी सही मशीन से, तो इस की को हम लोग ट्रायल कर करके ब्रूट फोर्स करके फाइंड कर लें। बट ऐसा होता नहीं है। लाइक अगर हम एक बिग पिक्चर में देखें तो हमें खाली ये दिखता है कि पब्लिक की प्राइवेट की है, बट इसके अंदर खाली ऐसा नहीं होता। ये जो पब्लिक की प्राइवेट कीज होती हैं, ये डिज़ाइंड ही ऐसे हैं कि ये डिक्रिप्ट नहीं हो सकती। लाइक हम इनको जनरेट कर सकते हैं
या किसी भी टेक्स्ट को हम एज अ 8255 एल्गोरिथम हम लोग उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं, बट हम इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। आप उसमें कितना ब्रूट फोर्स कर लो, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल दूं पब्लिक की का, एक पब्लिक की दिखाऊं मैं आपको। मैं इथीरियम की पब्लिक की दिखाता हूँ। ये होती है एक पब्लिक की, एंड इसी से मैप्ड होती है एक प्राइवेट की। अब इस की को ब्रूट फोर्स करके इस हैश को, इस की को फाइंड करना बहुत इम्पॉसिबल ही है। मुश्किल तो छोड़ी दो, इम्पॉसिबल है। और हमें खाली इस की से, अब हमारे पास ये की है और इससे इसकी प्राइवेट की को आइडेंटिफाई करना, वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मतलब वो कर ही नहीं सकता। आपके पास जितना सही सिस्टम हो, जितना सही कोड हो, वो नहीं हो सकता। तभी एक चीज़ आपने सुनी होगी कि ब्लॉकचेन जो होती है, वो उसको हैक करने के लिए आपको मशीनरी वाइज या कोड वाइज तो बहुत मुश्किल है। आप नेटवर्क में जाके इन पर्सन जो वहाँ वैलिडेटर्स हैं उनके साथ मिलके कुछ कर सकते हो कि आप कुछ भी, अगर आपको कुछ भी वहाँ पे बाईपास करना है तो इन पर्सन किसी के साथ हो सकता है वो, कि आप इन पर्सन जो वैलिडेटर्स हैं उनके पास गए, जिनका आप जो नेटवर्क में ऑलरेडी लोग हैं उनको आपने किसी तरह से कन्विंस कर लिया, और तब आपने ट्रांजैक्शंस में कुछ कंट्रोल लिया। वही भी बहुत इम्पॉसिबल ही है। लाइक वो भी खाली एक मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ सिचुएशन में, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो हो सकता है आप कुछ कुछ पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन कंट्रोल कर सको, बट वैसे ब्लॉकचेन जो होती है कभी भी हैक नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आपको किसी ब्लॉकचेन को हैक करना है, उसको ब्लॉकचेन को हैक करने का मतलब अगर मैं बिटकॉइन में बोलूँ, तो जो ट्रांजैक्शंस है उनको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना। वो करने के लिए आपको 51% ऑफ द ब्लॉकचेन तक आपको ब्लॉक्स को, अपने जो खुद के ब्लॉक्स हैं जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस मनी को, जिसमें आपके नाम पे जो ट्रांजैक्शन है वो हैं, अगर वो चाहिए तो आपको 51% ऑफ द ब्लॉकचेन को बाईपास करना होता है। अब ब्लॉकचेन जो बन रही होती है वो इतना इजी नहीं होता कि मैं बोलूँ कि नहीं यार मैं 51% ऑफ द ब्लॉकचेन को बाईपास कर लूँगा। वो सुनने में आसान लग रहा है, वो इम्पॉसिबल ही है। लाइक वो कोई कर ही नहीं सकता कि आपको 51% ऑफ द ब्लॉकचेन को बाईपास करना है। अगर न्यूअर ब्लॉकचेन है तो फिर भी शायद कुछ चांसेस हो कि जो न्यूअर ब्लॉकचेन है आप उसको 51% बाईपास कर सकते हो। बट जो ओल्डर ब्लॉकचेन जिनका इतना बड़ा नेटवर्क है पीयर टू पीयर, उनको बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि रीज़न ये है कि आपने बाईपास करने के लिए आपको फोक करना पड़ेगा। अब ब्लॉकचेन को फोक करोगे, अपने ब्लॉक्स डालोगे, तो आपको वैलिडेट कौन करेगा? सबसे बड़ा इशू यही है। आप मेम पूल में डाल भी दोगे अपने ब्लॉक्स, उन ब्लॉक्स को वैलिडेट कौन करेगा? कौन कौन सा रिटर्न ब्लॉक्स को उठाएगा जब उनको पता है कि यार यहाँ पे कुछ तो फिशी है? वो जो आपकी आप जित उसमें आप रिस्क लेके बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट करके मशीनरी लगा के सोचो कि मैं बहुत सारे ब्लॉक जनरेट करके डाल दूंगा, बट उस ब्लॉक को कोई वैलिडेट नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि एक बार आप कुछ फिशी करते हुए पकड़े गए तो बिल्कुल ही ब्लैकलिस्ट हो गया ब्लॉकचेन से। अगली बार कोई माइनर आपको वैलिडेशन नहीं देगा, ना उस टाइम देगा ना उसके बाद देगा। तो वो बहुत मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है किसी ब्लॉकचेन को हैक करना। तो ये बहुत सिक्योर हो जाता है ब्लॉकचेन इसलिए। अब ये है प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस एल्गोरिथम, जो मैं उतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक अगर ब्लॉकचेन में घुसना है, मैं लेता हूँ एक सिचुएशन कि आपको आज ऐसा एक माइंड में आया कि मुझे आज माइनर बनना है। आपने कहीं कहीं से तो कैपिटल जुगाड़ कर लिया और मशीनरी भी सेटअप कर ली। अब आप कैसे बनोगे? तो आपको मिलेगा एक नॉन्स, लाइक आपको नॉन्स मिल गया कि मुझे जनरेट करना है नॉन्स, और मेरे पास कुछ टाइम लिमिट है। आपकी मशीनरी ने वो नॉन्स जनरेट किया। वो नॉन्स जनरेट करके आपको जो डेटा था, जो ट्रांजैक्शंस थे, उससे ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक हैश से ब्लॉक नंबर डाल के आपने एक ब्लॉक जनरेट किया। उस ब्लॉक को मेमपूल में डाला। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी ब्लॉक को मेमपूल में डाल रहे हो, देन आप ये भूल ही जाओ कोई आपको वैलिडेट करेगा। पहली बात तो ये, अगर आप पहली बार डाल रहे हो,
क्योंकि इतना इजी है ही नहीं नेटवर्क में घुसना। आपको बार बार ऐसे नॉन जनरेट करना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ वर्क देना पड़ेगा। बेसिकली आपको बार बार नॉन से जनरेट कर रहे हो, वो आप एक प्रूफ ऑफ वर्क दे रहे हो कि मैंने माइनिंग करी है, मैं काफ़ी टाइम से बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा हूँ। एंड तो नेटवर्क आपको पहचानेगा कि हाँ ये बंदे के पास प्रूफ ऑफ वर्क है, और उसको एंट्री मिलेगी। मैं अभी बहुत ज़्यादा लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूँ, अगर आप टेक्निकली देखोगे तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, इतना इतना इजी नहीं होता। बट आप लोग ने ब्लॉकचेन के बारे में तो सुना नहीं होगा, फर्स्ट टाइम ही है, तो थोड़ा सा मैं इजी करके चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि आप इसकी पूरी थ्योरी में जाओगे ना तो वहाँ चीज़ें टेक्निकल ज़्यादा हैं, क्योंकि इतना इजी भी नहीं होता कि आपका जो ब्लॉक है वो मेमपूल तक भी चला जाए इजीली। पहली बात तो सबसे जो फर्स्ट स्टेज है कि जो नॉन्स आप फाइंड कर रहे हो वहीं फंस जाओगे, जितनी अच्छी मशीनरी ले आओ। उसके भी कुछ कुछ वेज होते हैं। फिर आपने वो फाइंड कर लिया, ब्लॉक जनरेट कर लिया, वो उस ब्लॉक को मेमपूल में डालना भी बिल्कुल ईजी नहीं होता, बहुत टेक्निकल होती हैं सब चीज़ें। तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है, वो खुद थोड़ा पढ़ सकता है उसके बारे में, बट आई डोंट थिंक कि अभी वो चीज़ समझ आएगी, क्योंकि जब तक आप ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पढ़ोगे, समझोगे नहीं कैसे ब्लॉकचेन काम कर रही है। अब ये प्रूफ ऑफ वर्क कुछ ब्लॉकचेन्स फॉलो करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, कुछ प्रूफ ऑफ स्टेक फॉलो करती हैं। तो वो एक लाइक पूरी अलग स्टडी है, वो ऐसे आपको एक एक सेशन में नहीं आ जाएगा कि कैसे हो रहा है सब। मैं अभी बहुत ही ज़्यादा लेमैन टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, बट चीज़ें बहुत ही डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं। जब आप पेपर्स पढ़ोगे, टेक्निकल एस्पेक्ट में घुसोगे, तो बहुत डिफरेंट होती हैं। अब ये नेटवर्क है, जैसे दिस स्टेप्स टू रन नेटवर्क, न्यू ट्रांजैक्शन आर ब्रॉडकास्ट टू ऑल नोड्स। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैं अगर ब्लॉक ऐड कर रहा हूँ, तो हर मेंबर को, हर माइनर को, या नेटवर्क में जितने भी लोग हैं सबको ये पता चल जाएगा कि मैंने कुछ ब्लॉक ऐड किया है। तो उसमें से अगर लाइक 100, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल नेटवर्क में 100 पीपल है, उनको उनके पास नोटिफिकेशन आया कि मैंने कोई ब्लॉक ऐड किया है। अब उसमें से जो 50 लोग हैं, 49 लोग हैं, उन्होंने मेरा ब्लॉक अप्रूव कर दिया कि इसमें कुछ फिशी नहीं है, इसको हम लोग ब्लॉकचेन में डाल सकते हैं। 51 ने ऐसा कहा कि इसमें कुछ फिशी है, ब्लॉकचेन में नहीं डाल सकते। तो मेरा ब्लॉक कैंसिल हो गया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द नेटवर्क आर सेइंग दैट देयर इज समथिंग फिशी इन माय ब्लॉक। तो वो मेरा ब्लॉक कैंसिल हो गया। अब मुझे फिर से नॉन्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर से ब्लॉक जनरेट करना पड़ेगा, दूसरी बार शायद से मेरा ब्लॉक एक्सेप्ट हो जाए। और ईच नोड वर्क्स ऑन फाइंडिंग अ डिफिकल्ट प्रूफ ऑफ वर्क इट्स फॉर इट्स ब्लॉक। तो ये जो प्रूफ ऑफ वर्क है यही है बेसिकली नॉन्स। तो ये नॉन्स आपको फाइंड आउट करना होता है, और ये आपका शो करता है कि हाँ ये प्रूफ ऑफ वर्क है आपका। When a node finds a proof of work, it broadcasts the block to all nodes. अगर किसी ने नॉन्स फाइंड किया तो सबको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने नॉन्स फाइंड कर लिया है। फिर वो ब्लॉक देखेंगे, चेक करेंगे इसमें कुछ भी फिशी हुआ, लाइक लिटरली अगर आपका ब्लॉक नंबर भी कहीं से रॉन्ग हो गया तो नहीं एक्सेप्ट होगा। तो 100, जो अगर 100 पीपल है ब्लॉक चेन के नेटवर्क में, तो 100 ही मना कर देंगे। उसके बाद नोड एक्सप्रेस देयर एक्सेप्टेंस ऑफ ब्लॉक बाय वर्किंग ऑन क्रिएटिंग द नेक्स्ट ब्लॉक इन द चेन यूजिंग द हैश ऑफ द एक्सेप्टेड ब्लॉक एज द प्रीवियस हैश। तो यहाँ पे जो प्रीवियस हैश था, ये जो मैंने आपको समझाया, तो ये लाइन भी यही स्टेट कर रही है कि हर ब्लॉक में उसका एक्सेप्टेड ब्लॉक का प्रीवियस हैश भी होना चाहिए। अब आते हैं इंसेंटिव पे। इंसेंटिव होता है बेसिकली कि अब मैं माइनर हूँ, या सोलाना पे मैं वैलिडेटर हूँ, या इथेरियम पे मैं वैलिडेटर हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है उससे। तो उसमें यही है कि उसमें आपको हर ट्रांजैक्शन पे कॉइन अलॉट हो जाएगा, टोकन्स मिल जाएंगे। अब वो हर ब्लॉकचेन का अलग है, बीटीसी के केस में बीटीसी ही मिलेगा, तो आपको बीटीसी मिल जाएगा। अब आप सोलाना पे अगर प्रोग्रामिंग करते हो, तो आजकल जो ट्रेडिंग के एस्पेक्ट में करते हैं, जो वैलिडेटर होते हैं वो अर्न करते हैं हर ट्रांजैक्शन पे। जो इंसेंटिव बनता है उनका, उससे सोलाना पे प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो अर्न करते हैं दूसरे मीन्स से, उनको ग्रांट्स मिल जाते हैं, या फिर वो किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे होते हैं, वहाँ से उनको सैलरी मिलती है उनकी, वो किस लिए मिलती है, लाइक वो प्रोग्राम लिखने के लिए मिलती है। तो हर हर एस्पेक्ट में आपको इंसेंटिवाइज कर ही रहे हैं ब्लॉकचेन्स, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न यही है, इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे तो कौन ही आएगा ब्लॉकचेन पे। तो ब्लॉकचेन पे लोगों को लाने के लिए इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। ये चीज़ जो है, रिक्लेमिंग दिस स्पेस, ये आई डोंट थिंक ये चीज़ समझ आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मर्कल ट्री वगैरह का यूज़ हो रहा है। तो
ये इसको स्किप ही करते हैं, बट अभी इस सेशन के लिए शायद प्रिवेसी भी आपको समझ आ जाएगा। ये ये समझ आ सकता है, और ये शायद से मैं इसका भी और भी आपको दे ही चुका हूँ। ये भी इतना ही समझ लो आप कि प्रिवेसी के जो मेन प्रिवेसी का एस्पेक्ट यही है कि भाई मेरी प्राइवेट की है मेरे पास, और मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, वो प्राइवेट की कोई कोई भी नहीं वो कर सकता। जब तक मैं किसी को खुद ना बता दूँ, कोई मुझसे निकलवा ना ले, कोई गेस नहीं कर सकता। अब मैं एटीएम पिन की बात करूँ, तो स्टैंडर्ड एटीएम पिन 4 डिजिट्स का होता है। अब अगर ओटीपी वाला मॉडल हटा दूँ, और मैं खाली एक किसी का एटीएम कार्ड मुझे मिल गया, और उसने ब्लॉक भी नहीं करा रखा है, अब मुझे उसके चार चार डिजिट्स का पिन गेस करना है। वो और 4 डिजिट्स का पिन भी उसमें प्रॉपर खाली नंबर्स ही होते हैं। वो गेस करना मेरे लिए कितना आसान है, और उसके ऑल्टरनेट में जो ये ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसमें मेरी प्राइवेट की कोई गेस कर दे, वो कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो ये प्रिवेसी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो यस, इस पे तो जितना और भी आपको मिलना है था ब्लॉकचेन का, मैंने उतना दे दिया है। अब मैंने कहा था आपको मैं थोड़ा सा सोलाना, जो आजकल थोड़ा हाइप्ड है सोलाना, वो समझा दूंगा। सोलाना बेसिकली क्या है, सोलाना खाली ट्रेडिंग पे नहीं फोकस कर रहा, कि वो ये नहीं कह रहा खाली कि मैं आपको एक कॉइन दे रहा हूँ उसको ट्रेड करो। वो कह रहा है कि उसका एक इकोसिस्टम है सोलाना का। उसमें प्रोग्रामर्स भी हैं जो प्रोग्राम बना रहे हैं, और उसमें माइनर लाइक वैलिडेटर्स भी हैं। तो जो ब्लॉकचेन सोलाना है वो वर्क करती है प्रूफ ऑफ स्टेक पे। तो उसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएंगे, वरना बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी। मैं जार्गन्स जो फेंके जा रहा हूँ तब से, वैसे तो मैंने कम कोशिश करी, बट वेब 3 में ये थोड़ा सा बेसिक, जो अब जब आप फर्स्ट टाइम वेब 3 के बारे में पढ़ते हो तो ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे जार्गन्स हैं। तो उस फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी है कि जार्गन्स में कम ही फेंकूँ। बट सोलाना में प्रूफ ऑफ स्टेक यूज़ होता है, तो प्रूफ ऑफ स्टेक को आप सबसे बेसिक टर्म्स में यही सोच सकते हो कि जो जितना अमाउंट स्टेक करेगा उसके ज़्यादा चांसेस होंगे वैलिडेटर बनने के। तो अगर आप एग्जांपल लेते हैं आपकी क्लास का ना, वो अब जब क्लास मॉनिटर का सिलेक्शन हो रहा होता था, तो क्लास टीचर देखती थी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, फिर सबसे ज़्यादा अटेंटिव कौन है, और इन सब चीज़ों को कंबाइन करके वो एक मॉनिटर सेलेक्ट कर लेती थी। फिर वो मॉनिटर क्या करता था कि सबको समझाता, सबको वैलिडेट ही करता था वो, कि तुम ऐसा ना करो, तुम ऐसा ना करो। तो सेम वैलिडेटर को मान सकते हो अभी समझने के लिए, कि सोलाना में वैलिडेटर सेलेक्ट होता है उस बेसिस पे कि कौन सबसे ज़्यादा सोलाना स्टेक कर पाता है। और खाली उस पे भी नहीं होता, लाइक वो मोस्ट लाइक जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो यही होता है कि भाई कितना सोलाना स्टेक कर सकते हो। और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे एक वैलिडेटर जो होता है वो नेटवर्क में घुस सकता है, और नेटवर्क में घुस के वो ट्रांजैक्शंस कर सकता है, प्रोग्राम्स बना सकता है, डीएप्स बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यार यही था इस सेशन के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो काफ़ी हद तक। मतलब मैंने कोशिश करी आप लोगों को समझाने की, बट आई नो कि बहुत 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 ज़्यादा डाउट्स होंगे अभी मन में। अगर जो डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लियर करने का लिटरली बेस्ट तरीका है, अब तो चैट जीपीटी पे जाओ, और जो भी डाउट आया उसके सामने इतना लिख देना कि एक्सप्लेन इट टू मी एज अ सीनियर डेव, बस। और वो आपको लाइक ऐसे एकदम टेक्निकल टर्म्स में भी समझाएगा, और इतने सही से समझाएगा कि लाइक ये हैक है समझ लो चैट जीपीटी का, कुछ समझना हो तो। जो चीज़ नहीं समझ आ रही है आप जाओ खुद करो, और बाकी तो मैं कॉलेज में ही हूँ, तो मुझसे आके पूछ लेना, मैंने ही सेशन रिकॉर्ड किया है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, पूछ लेना, जैसा भी होगा मैं बता दूंगा। तो चलो यार, थैंक यू। और आई होप कि सबको समझ आ गया होगा जितना आना चाहिए। बाकी डाउट्स जो भी हों उसको मेरे को फीडबैक टाइप का दे देना। तो बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे तो एक और सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा, और उसके बाद देखते हैं। अभी फर्स्ट सेशन था तो धीरे धीरे मैं भी अपने साइड पे इम्प्रूव करूँगा, और कैसे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उस वे में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ठीक है।